Hello students, today we will start with reading an explanation of the story. The first chapter of the snapshot, that is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sharon. This is a chapter which is about the two poor Armenian boys. दो गरीब लड़के होते हैं जो आर्मीनियन हैं. They belongs to Armenian tribe and they are known for their virtues like trust and honesty. हालांकि वो दोनों बच्चे जो हैं बहुत गरीब हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे बच्चों की जो माइंड होता है या उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो किस तरीके से पूरा करते हैं. Now let us read the story. One day back, there in good old days, when I was 9, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who know him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of the bed and looked out of the window. I could not believe what I saw. It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white house. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. It is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who could ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that would not permit me to believe what I saw. तो अभी तक की जो स्टोरी है उसमें हमें ये समझ में आया है कि जो अरम है वो 9 इयर्स ओल्ड है और उसका कज़न जो है वो मुराद है. और मुराद जो है उसको सुबह सुबह आके उठाता है जब अभी सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, धूप नहीं निकली है, सारे जो लोग हैं विलेजर्स हैं वो भी सोए हुए हैं. तो वो आता है और उसको उठाता है विंडो टैप करके, विंडो पे नॉक करके. और वो एकदम से हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल स्प्लेंडेड हॉर्स जो है वो वहाँ पे है. और क्योंकि उसकी लॉन्गिंग है, उसकी डिज़ायर है कि वो एक हॉर्स जो है वो हो उसके पास और वो उसको चलाए और उसको राइड करे. तो ये देख के वो एकदम से हैरान है कि इतना सुंदर हॉर्स जो है वो उसके पास, उसके कज़न के पास कहाँ से आया. तो वो सोच रहा है कि शायद ये ड्रीम है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि अभी दिन निकलने वाला है और जहाँ वो रहता है वहाँ पे अभी सुबह हो चुकी है. लेकिन वो इस चीज़ को अभी तक मान नहीं पाया है कि इतना सुंदर हॉर्स जो है वो उसकी खिड़की के बाहर जो है वो खड़ा है और मुराद उसको बुला रहा है. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन. एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we linked to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong. None of us would take advantage of any in the world, let alone steal. तो इस स्टैंजा में हमें गैरोग्लिन जो फैमिली है, जो ब्रांच है आर्मेनियन ट्राइब की, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है कि दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल. वो हमेशा राइट एंड रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करना जानते हैं. तो दीज आर सम पॉजिटिव क्वालिटीज़ विच द ऑथर इज़ स्ट्रेसिंग अपॉन. वो हमें बता रहा है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं वो जो आजकल नहीं देखी जाती हैं वो इस ब्रांच में जो है वो देखी जाती हैं. गरीब होने के बावजूद भी जो क्वालिटीज़ हैं वो उनकी फैमिलीज़ में, उनकी ब्रांच, जो फैमिली ब्रांच है, फैमिली ट्री है, उसमें बहुत काफ़ी पुराने टाइम से चली आ रही हैं. जो जैसे कि राइटर ने यहाँ मेंशन किया 11 सेंचुरीज से.
तो यानी 1100 साल से ये क्वालिटीज़ जो है उनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि आज तक उनको ये समझ में नहीं आया है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। दे आर सो मच पुअर दैट दे इवन कांट इमेजिन कि देयर बेलीज कैन बी फिल्ड विद फूड। लेकिन फिर भी क्या है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो कभी भूखी नहीं सोई हैं। और ये तो बच्चों को क्या, उनके फादर्स को क्या है, उनकी पुराने जो जनरेशन के लोग हैं, उनके ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, उनको भी आज तक ये समझ में नहीं आया कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को फूड जो है, प्रॉपर फूड जो है वो प्रोवाइड कर सकें। उन्होंने आज तक तो ना तो कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और ना ही कभी कहीं चोरी की है, तो चोरी भी वो नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो आरम है इसको ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि इतना सुंदर हॉर्स जो है वो मुराद कहाँ से लेके आया है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. No member of Gargolian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब इन पैराग्राफ्स में हमें ये समझ में आया है कि जो अरम है उसके मन में ये तो आ गया है कि हॉर्स तो एक्चुअल में है बाहर, ही इज़ नॉट ड्रीमिंग एंड द हॉर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन वो अब ये सोच रहा है कि क्या ये ख़रीद सकता है मुराद। तो वो उसको पता है कि वो इतने गरीब हैं कि वो हॉर्स तो नहीं ख़रीद सकता, तो ये हो सकता है उसने चोरी किया हुआ। लेकिन फिर भी वो ये नहीं मान पा रहा है अभी तक कि ये उसने चोरी किया है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं सकता कि जो उनकी गार्गोलियन फैमिली है उसमें कोई चोर भी हो सकता है। तो वो कहता है कि मैंने पहले घोड़े को देखता है, फिर वो मुराद को देखता है और एकदम से शांति होती है वहाँ पे। तो उसको लगता है कि एक बार तो वो खुश होता है कि हाँ उसके पास हॉर्स है जिसको वो बहुत देर से चाहता था और उस पर घुड़सवारी करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ उसको डर भी लगता है कि ये जो चोरी की है, जो जिसके बारे में अभी उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये उसका जो कज़न है मुराद वो चोरी भी कर सकता है। तो ये चीज़ जो है उसको थोड़ा सा डरा भी रही है। तो मुराद को जो है वो अरम पूछता है कि क्या तुमने ये सच में चोरी किया है। तो मुराद उसको कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता है, लेकिन उसके आंसर से जो है, जब वो कहता है कि तुम्हें चलना है, इसको हॉर्स को राइड करना है तो आ जाओ, तो ये सोच के वो ये अंदाज़ा लगा लेता है अरम कि ये हॉर्स जो है वो उसने चोरी किया है। और मुराद जो है वो उसको यहाँ पे सिर्फ यही पूछने आया है कि क्या वो घोड़ा राइड करने के लिए, घुड़सवारी के लिए उसके साथ जाना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पे अब बच्चे जो हैं इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है कि वो घोड़ा चलाने जा रहे हैं। लेकिन अब देखो स्टीलिंग की जो डेफिनेशन है वो भी थ्रू राइटर ने जो है थ्रू द माउथ ऑफ आरम जो है वो बताई है यहाँ पे कि चोरी एक्चुअल में क्या है। वेल, इट सीम्स टू मी stealing a horse for ride was not the same thing as stealing something else such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about the horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad.
That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was a country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue. And then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to roar. इन लाइंस में राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों की जो चाहत थी घोड़े को चलाने की या घोड़े को राइड करने की, उस पर सवारी करने की, उसके लिए देखो दे आर सो मच अवेयर अबाउट द वर्चूज़ विच आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फैमिली. उन्होंने अपने वर्चूज़ को तो जो थे, जैसे कि यहाँ पे स्टीलिंग के बारे में बात की है, तो दे आर अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट द वर्चूज़ विच दे आर इनहेरिटिंग फ्रॉम देयर फैमिलीज़. सो बच्चे जो थे उनको पता था कि और जो अरम था वो इतना कॉन्फिडेंट था, वो कह रहा था कि हम उसको कभी बेचेंगे नहीं, और अगर हम उसको बेचेंगे नहीं तो वो चोरी जो है वो नहीं होगी. हम वी आर नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी जस्ट टू गेट सम मनी, या हम पैसे के लिए या पैसा कमाने के लिए ये हरकत नहीं कर रहे थे, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल देयर लॉन्गिंग फॉर द राइडिंग. अरम का कहना था कि मुराद जो है वो उनकी पूरी फैमिली में क्रेजीएस्ट मेंबर है, यानी एक जिसको हम पागल बोलते हैं, पागल इन द सेंस ऑफ फन एक्टिविटी, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है पूरे तरीके से. तो मुराद जो है वो ऐसा है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रेजीएस्ट मानी जाती हैं फैमिली में. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. तो अरम जो है वो बता रहा है कि मुराद की जो क्रेजीनेस है और अंकल कॉसरोव की जो क्रेजीनेस है, दे आर कंपेरेबल. यानी इट सीम्स कि कारसोव अंकल जो हैं वो उसके फादर हैं, बट कि वो उसके फादर नहीं है, वो उसके अंकल हैं, और जो उसके फादर हैं वो बहुत ही शांत हैं. लेकिन क्रेजीस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि मुराद जो है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है अंकल कैसरोव का, यानी कि वो डायरेक्टली उनका ही बेटा है, जबकि वो उसके अंकल हैं. That was all. No matter what anybody happened to be talking about, once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having a mustache trimming to tell him their house was on fire. The man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm. Pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough. It is no harm, I say." My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be a father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirits in our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो राइटर ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि फैमिली में या फैमिली हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि जो फादर का बेटा जैसा है वैसा, जैसा फादर होगा वैसा ही उसका बच्चा होगा. यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की है कि कोई भी कैसा भी क्रेज़ी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. लेकिन यहाँ पे मुराद और अंकल कैसरोव जो हैं वो दोनों एक दूसरे से उनकी पर्सनैलिटी मैच करती है. वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग फॉर ऑल एनीबडी न्यू. We were still in the old country where, at least according to some of neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down, the horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with the horse." "Well," I said, "any way you have with the horse I have also."
For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. I got down, and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run. The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into the fury of speed that the things I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I did not know what to do. Instead of running across the field of the irrigation ditch, the horse ran down to the road to the vineyard of Dikan Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way, and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. I continued down the road, and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. He did not sound worried, and I knew he would hide him and not take him back. Not for a while, at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो यहाँ पे बच्चे जो हैं ये राइड को एंजॉय करते हैं दोनों टर्न बाय टर्न। और जो मुराद है वो तो बहुत ही एफिशिएंट राइडर है, जबकि आरम जो है उसने आज फर्स्ट टाइम राइड किया और वो उसने बहुत अच्छा उसको फील हुआ। तो उसका जो डर था जिससे राइडिंग के लिए उसका जो डर था उसके मन में वो भी निकल गया। ऑल्दो वो गिर गया रास्ते में, लेकिन फिर भी उसको वो हॉर्स को राइड करने में बहुत मज़ा आया, घुड़सवारी का बहुत मज़ा आया। और उसको एकदम से उसके दिमाग में ये बात आई कि जो अरम है अरम के दिमाग में एकदम से बात आई कि मुराद जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, तभी वो इतना एफिशिएंटली उसने राइड किया है। तो वो उसको पूछता है कि ये तुमने कब से छुपाया हुआ है, इसको हॉर्स को कब से तुमने चोरी किया हुआ है या छुपाया हुआ है अपने पास, और कब से वो जो है ये अर्ली मॉर्निंग की राइड्स जो हैं वो ले रहा है। और आज उसने अरम को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो जानता है कि अरम जो है उसके मन में बहुत देर से ये डिज़ायर है कि वो भी हॉर्स जो है उसको राइड करे। Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly into the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetvijan. There were some more oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. How do you do it? I said. I have an understanding with the horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said.
A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. तो मुराद की बातों से यहाँ पे पता चलता है कि उसने हॉर्स को काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ है और वो उसके साथ बहुत अच्छा घुल मिल गया है और वो उसको अच्छे से कंट्रोल जो है वो कर सकता है। तो इसलिए वो जो है बहुत अच्छे तरीके से राइडिंग कर रहा है। और उन्होंने क्या किया है अब, क्योंकि वो दिन ज़्यादा हो चुका है, लोग उठ गए हैं, तो उन्होंने हॉर्स को क्या है छुपा दिया है एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, सो दैट वो कल सुबह फिर से जो है मॉर्निंग राइड के लिए उसको लेके जा सके और किसी की नज़रों में भी ना आए। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Brew, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother bought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then, at last, sighing sadly, he said, My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. My uncle Khosrow became very irritated and shouted, It is no harm. What is the loss of horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Barron said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. I walked 10 miles to get there, John Barrow said. You have legs, my uncle shouted. तो आरम जो है वो देखता है कि दोपहर को उसके अंकल जो हैं वो उनके घर पे आए हैं और वो बैठे हैं। तो यहाँ पे राइटर ने बताने की कोशिश की है कि दे आर द आर्मेनियंस आर वेरी हॉस्पिटेबल, यानी वो घर आए मेहमान की बड़ी सेवा करते हैं, आदर करते हैं, उनको अच्छा से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे अंकल जो कैस्ट्रोव हैं वो आए हुए हैं और जब उनके साथ ही वो कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में सिगरेट को स्मोक कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही एक और विज़िटर आ जाता है वहाँ पे और वो जो वो एक किसान है और उसका नाम है जॉन बायरो। आरम की जो मदर है वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, उसको कॉफ़ी ऑफ़र करती है, टोबैको ऑफ़र करती है और बताती है कि ये जो विलेजर है या फार्मर है ये अकेला रहता है तो उसका बड़ा ध्यान रखती है वो। और फिर वो जो है जो फार्मर है अंकल जॉन, वो क्या करते हैं, कैस्ट्रोव को बताते हैं कि मेरा जो घोड़ा है वो मुझसे गुम हो गया है या वो कहीं चला गया है, तो आई हैव लॉस्ट माई हॉर्स, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो इसी पे, क्योंकि हमें पता है अंकल कैस्ट्रोव जो है बहुत इरिटेटेड पर्सनैलिटी है और बहुत ही गुस्से वाले हैं, क्रेज़ी पर्सन है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे, घोड़े के नुकसान से, हमने अपना होमलैंड छोड़ दिया है, हम यहाँ आके रह रहे हैं, तो घोड़े के लिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जॉन है, फार्मर जॉन है, वो बोलता है तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सिटी में रहते हो, बट मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो मुझे हॉर्स के लिए मुझे बहुत चलना पड़ता है, तो इसलिए, और मेरी जो सैडल है सरे है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हॉर्स नहीं होगा तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि वो बड़ा फ़िक्र कर रहा है अपने हॉर्स की, उसको ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसका घोड़ा जो है वो 1 महीने से लापता है। तो तो जब फार्मर बोलता है, जॉन बैरियो बोलता है कि मुझे 10 मील चलना पड़ता है यहाँ आने के लिए, तो इस पर फिर अंकल कैस्ट्रोव जो होते हैं वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, शाउट करते हैं कि तुम्हारे पास टांगे नहीं है, तुम टांगों से नहीं चल सकते हो। तो फिर जॉन बायरो बोलता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कॉसरोव रोड। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। I spit on money, my uncle Casro said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house.
He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Brew, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Garoglian family to steal? The horse must go back to its true owner. When I said, in 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. One morning, on the way to Fetwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Berrio, who was on his way to town. After reading this page, we came to know that the price of the horse is very high. It is about $60. तो $60 का वो जो था घोड़ा था जो उन्होंने छुपाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे अंकल कॉसरोव जो है वो बोलते हैं आई स्पीट ऑन मनी, तो यानी मनी जो है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ट्राइब। इनके लिए मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ द रेपुटेशन एंड द वर्चूज़ दे ओन। तो ये सब देख के जो अरम है वो मुराद के घर जाता है, उसको बताता है कि ये जो हॉर्स है वो अंकल बायरो का है और वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ पे एक और हमें करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो इस ट्राइब का देखने को मिलता है कि दे आर वेरी जेंटल एंड केयरिंग। जो कि मुराद जो है वो एक बर्ड को जो है वो उसको ठीक कर रहा होता है, उसको फर्स्ट एड दे रहा होता है क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है और फिर वो उसको उड़ा देता है। तो यानी कि दे आर नॉट ट्राइंग टू कीप द थिंग्स विद दैम, इट इज़ जस्ट फॉर द फन एंड एक्टिविटी दे आर यूजिंग दैम एंड देन लेट देम फ्री। अरम जो है यहाँ पे मुराद को परsuade करने की कोशिश करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है कि तुम तब तक हॉर्स नहीं दोगे जब तक कि मैं भी तुम्हारे जैसे अच्छे से हॉर्स ना चला लूँ। लेकिन मुराद उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिए तुम्हें पूरा साल लग जाएगा और हम तब तक इसको नहीं अपने पास रख सकते, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो दोनों बच्चे जो हैं वो 2 हफ्तों तक उस हॉर्स को राइड करते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो उसको चलाना, जो अरम है वो हॉर्स को चलाना सीख लेता है। क्योंकि वो ये भी बताता है कि जब मुराद राइड करता है तो हॉर्स बहुत अच्छा स्मूथली काम करता है, लेकिन जब वो करता है तो हॉर्स उसको वाइनयार्ड्स में जाके गिरा देता है। लेकिन धीरे धीरे फिर भी वो अपना दिल जो है वो नहीं छोड़ता है और वो कोशिश करता है कि उसको अच्छे से राइड कर सके और वो उसकी प्रैक्टिस करता है और एक दिन वो अच्छे से राइड करना सीख जाता है। तो एक दिन बच्चे जब वाइन यार्ड में हॉर्स को लेने जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में फार्मर जो होता है किसान जॉन बेरियो होता है उससे टकरा जाते हैं और वो उनसे पूछता है, जो मुराद है वो कहता है कि मुझे तुम बात करने दो क्योंकि मुझे आई हैव अ वे विद फार्मर्स, यानी मुझे उनसे अच्छे से बात करना आती है। तो यानी ही वॉज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय जो है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर लेता था। तो यहाँ पे वो क्या है जॉन बरेयो से बात करता है, उसको गुड मॉर्निंग विश करता है और जो उसको जो है वो घोड़ा जो है उसको जो जॉन बैरियो जो है वो घोड़े को बड़े ध्यान से जो है वो देखते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन बैरियो, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? My Heart, my cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said.
I would swear it is my horse if I did not know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. Good day, John Byrow, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Byrow's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us round without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. That afternoon, John Byrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that he had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. जॉन बायरो जो है वो बच्चों से बड़े पोलाइटली बात करता है। वो उनको ये पता नहीं चलने देता कि उसको शक हो गया हुआ है कि ये हॉर्स जो है वो उनका है। ऑल्दो ही वेरी ईगरली वॉच्ड द हॉर्स, इंस्पेक्टेड हिम, उसको बहुत अच्छे से जांचता है, उसके अच्छे से उसको चेक करता है टूथ बाय टूथ, यानी एक एक चीज़ जो है उसकी वो चेक करता है। और वो बहुत एश्योर्ड होता है कि ये हॉर्स जो है वो उसी का है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को ये चीज़ फील नहीं होने देता कि उसको पता है। और क्योंकि वो जानता है कि वो जो बच्चे हैं वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली के हैं और उनके जो वर्चूज़ हैं वो बहुत ही हाई हैं, दे आर ऑनेस्ट। उनके पेरेंट्स ने उन जो है उनको वो अच्छे से जानता है कि वो कैसे लोग हैं। तो इसलिए जॉन बायरो जो है बच्चों को गुड डे विश करता है और वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों की जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है टूवर्ड्स देयर वर्चूज़ एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द फैमिली, और वो जो फील करते हैं उस टाइम पे, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, उसी शाम को जाके वो जो घोड़ा है वो जाके उसके वहाँ पे बांध के आ जाते हैं उसके यार्ड में। तो ये देख के जॉन बायरो बहुत खुश हो जाता है और वो फिर हंसता हुआ अगले दिन जो है घोड़ा लेके उनके पेरेंट्स को दिखाने के लिए चला जाता है। आरम की मदर के पास चला जाता है और उसको दिखाता है कि उसका घोड़ा देखो कितना सुंदर है। और वो कहता है कि ये घोड़ा जो है अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया है और अच्छा बिहेव भी करता है। तो ये चीज़ देख के वो जॉन बायरो भी खुश होता है और बच्चे जो हैं वो भी अपनी इंजॉयमेंट जो है उन्होंने फुलफ़िल कर ली होती है उस हॉर्स के साथ, दोनों ने सीख लिया होता है हॉर्स को चलाना। तो यहाँ पे फिर जो है उनके अंकल का जो टेम्पर है उसको दिखाया जाता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या उनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो अंकल जो कॉसरोव हैं वो बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चुप कर जाओ, हॉर्स तुम्हारा मिल गया है, अब इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल दैट थिंग मैटर इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ द चिल्ड्रन दैट दे आर फॉलोइंग द वर्चूज़ विच दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड द फैमिली। तो ये है इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो समझ में आता है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, वो आपका करेक्टर नहीं बनाती है, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट कैन बिल्ड यू एज दैट कैन ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ गुड पर्सन और इनटू अ बेटर पर्सनैलिटी, जिसमें बहुत सारे वर्चूज़ जो हैं वो शामिल हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में जिनको हम प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा चैप्टर। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे एट होम।